Hey, good morning, everyone. And first of all, a very happy new year to everyone. May this year would bring you into the IT, into the Salesforce. So what exactly you are dreaming, may, you know, may God would give you everything. Anyways, all right. So let's now, this is going to be the last topic inside process filter. Although there are so many other actions as well, but mostly it's how to create a record and how to update the records, and then how to send the emails and few more things. See, in the last example, if you remember, let me, I think it was with account. Yeah. See, if you remember, what we did is like, we created an automation where particularly on the account, like we created an automation, we created a process builder. Now, what this process builder was doing, like, whenever you create an account record, so it would be creating a related contact for that. And if you remember it properly, I told you that this is very important when you are creating this process builder. So inside the contact object, there's a field called account ID. Let me try to show you that. All right. So if I go to, for example, I can scratch it from here itself. Let's see whether inside the account, oh, not inside the account, actually inside the contact. Inside the contact, if you go with view fields, like here you can see the label. Actually, the label is account name. Label is account name. If I would show you, I mean mm, the exact field name for that. Let me take you to the developer console, and now I'll go with objects, and I'll go with precisely contact. And let me try to show you all of the fields of contact object. So see now, there's a field called account ID, this one. There's a field called account ID, this one, right? Now, what is the significance of this field? Let's first revise this, and we are going to discuss this. I mean, all right. See, uh, one thing like every one of us should know is, I told you that uh, there's a lookup relationship between account and contact, and not just with account and contact, but account, contact, cases, and there are so many other objects as well, where account is related as a parent, and there's a lookup relationship. Between account and contact also there is a lookup relationship. Now, what we have learned about relationship when we were discussing that, I told you whenever we form a relationship, so the relationship fields are always present onto child object. That we know, because this is what we had discussed here. Relationship creation is a two-step job. In a step number one, you first of all would have to identify among the two objects which one is going to be the child. And in step number two, you should create a relationship field. It could be a lookup relationship, could be a master detail relationship, whatever, but that should be always created inside the child object. So now when we talk about the same concept, if I'm talking in perspective of account and contact, I'll say that between account and contact, contact is child, and there is a lookup relationship between account and contact. Now, in account and contact, if there is a lookup relationship, and by the way, if contact is child, there must be some field, there must be some field which would allow you to select a corresponding, corresponding parent, corresponding account for that. So what is that field? I mean, on the user interface, if we see the same thing, on the user interface, if you go and if you see the same thing, like if you go to the contact and you try to create a new contact, you can see there's a field called as account name. There's a field called as account name, but that is what is a label. That is what is a label, right? With this field, you can select a particular account for this contact. And I mean, you can see that account name, it's a label, and field name is account. But actually, the internal name, the actual API name for this field is account ID. Now, what is the significance of this field? This field is what? It's a reference field. Reference matlab relationship. Of course, it's a relationship field. So, in the last, I mean, with this example, what we did is like, I first of all, I mapped everything. I mean,
I just wanted to revise the same mistake. I mean, what we did. I mapped everything. Like inside, for example, the contact last name, account's name should appear inside this business phone and everything. So I was trying to get every field, fields from the account. But the one important thing that I missed was like, I have not supplied the respective account ID to the account ID field of contact. And thus what was happening was like, if for I mean, if you go to the contacts, there were so many contacts was created. Like, I mean, I think this one. Yeah, this was created. Test account 2, but it is not related to any account, as you can see. So contacts was getting created. ऐसा नहीं कि contact create नहीं हो रहा था. Contact was getting created. Like for every account what we created, for all of those account, test account 2 or maybe test processing, I think that was the first one which I created. So you can see that for this account record, if there is an account record called as test, this one something something, for that contact, for that account, even the contact was also created. See, the contact was also created, test processing. And if you can see the name, what is the name of account? Test process sync 1. What is the last name of contact? Same, test processing 1. What was the phone number and fax? Everything was copied. It was copied all properly. Only issue was this contact was not related to account. In the account name, you can see there's no account. So why this was happening? Because I forgot to mention, I forgot to select, I forgot to sync inside the contacts account ID. I forgot to sync the respective account ID. So our process builder was working fine that time. But only here, what was happening? It was creating contact, but individual. I mean, these contacts were not the related contact. So when we identify this mistake, after identifying this mistake, we go back and we clone that process builder, and then we make the changes over there. And I think this one was the record which I finally created, right? Huh. So after synchronization. So after synchronization, when I copied, inside the contract account ID, when I copied account ID, and then what was happening? Okay, every time now, whenever an account would be created, it is created along with a related contact. And this contact is getting fields like phone, fax, and everything, mailing city, and this is what we committed over there, and that's the reason we are looking into it like this, right? So now that was one thing. That was one thing. Now let me show you one similar kind of use cases where what happens is like, see, there in some of the business requirement, there this is just an example, of course. ऐसा नहीं है कि ये हमेशा अकाउंट और कॉन्टैक्ट के बीच की बात रहेगी. I'm talking about, like, I'm talking, first of all, try to understand the requirement. I'm talking about, for example, there are two objects. All right, let's consider there are two objects. One of them essentially is, parent. One of them is parent, and the another one is child. And there are few fields inside the child. There are few fields inside the child. Let's say field number 1, F1, and then maybe like F2, and maybe like F3, or maybe like field number 4. Okay, understand this scenario. Rather than then we'll go to see, what we are trying to do. So inside the child object, there are few of the fields which should always get a value, which should always be in synchronization with the respective parent. मतलब क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर 4 fields हैं, there are 4 fields inside, these are the 4 fields inside, the child object. We should always have a value synchronized to 4 respective fields of the parent. मतलब यहाँ पे मान के चलो कि P1 नाम की एक फील्ड है, एक P2 नाम की फील्ड है, एक P3 नाम की फील्ड है, एक P4 नाम का फील्ड है. अब होना ऐसा चाहिए कि P1 में जो भी वैल्यू है, that value should, F1 should always have a value of P1. Similarly, F2 should always have a value of P2, F3, P3, and accordingly F4 में हमेशा P4 से value आना चाहिए. And they should always be in a proper sync state. कि if you commit any changes over here, कि मान के चलिए आपने P1 और P3 की वैल्यू चेंज किया इधर में पेरेंट साइज में, तो इट शुड ऑलवेज F1 और F3 का वैल्यू भी चेंज हो जाना चाहिए ऑन द चाइल्ड एंड, ऑन द चाइल्ड साइड. So this is called as a proper synchronization, a real-time synchronization. Or this is a very common scenario in most of the real-time use cases. There are certain business reasons for which we have to develop
this kind of real-time synchronization जिसको बोलते हैं. Okay, if there are few of the fields inside one of the object that are properly synced with another object. Okay, if you commit any changes over here, तो वो प्रॉपर फील्ड दूसरी जो फील्ड है उसमें भी वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए. ऐसा रियल टाइम में बहुत बहुत मर्तबा आता है जहाँ पे आपको इस तरह से मॉड्यूल्स डिजाइन करने पड़ते हैं. ठीक है, तो अभी उसको कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए फिर हम ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गो विद अपडेट वाली फील्ड. अब यहाँ पे मैं इस एग्जांपल को ऐसे सेटअप करता हूँ आप लोगों के लिए कि लेट्स कंसीडर दैट कि मेलिंग स्ट्रीट ये सब छोड़ देता हूँ. बट हाँ, इफ फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट में जो फोन है और अकाउंट में जो फैक्स है, आई एम गोइंग विद जस्ट टू फील्ड्स बिकॉज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू क्रिएट एंड व्हाट्स द रिक्वायरमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट. आप फील्ड्स कितनी भी ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल कि if I make any changes in account's phone number and the fax number, that should properly sync with phone and fax of the related contact. कि अगर आप यहाँ पे कोई changes कर रहे हैं, if you are making any changes over here, so if you are making any changes over here in the account, phone and fax, that should be properly synced to contact's phone and fax. आपने account का phone change किया तो contact का phone भी change हो जाना चाहिए. आपने account का fax change किया तो contact का fax भी change हो जाना चाहिए. change. All right, this should get happen, which is not happening right now. I mean, if I see, मैं अभी आपको live दिखा देता हूँ. If I make it like for example all one, नहीं वो all one नहीं all nine. Let's say कि all nine कर देता हूँ मैं इसको. If I make it all nine and now if I try to save it, ठीक है, now if I try to save it, let's see what happen. ठीक है, तो आप देखो अभी अकाउंट जो है अकाउंट फोन की जो वैल्यू इट्स ऑल बिकम 9, लेकिन कॉन्टैक्ट की वैल्यू अभी भी स्टिल इट्स होल्डिंग द ओल्ड वैल्यू ऑफ जो अकाउंट की पुरानी वैल्यू हुआ करती थी. एंड सिमिलर दिस वुड हैपन विद द फैक्स आल्सो बिकॉज यहाँ ये जो हमने इसके लिए जब बिजनेस लॉजिक बनाया था प्रोसेस बिल्डर, दैट वाज ओनली ऑन क्रिएशन ऑफ द रिकॉर्ड, इट वाज नॉट ऑन क्रिएटेड एंड अपडेटेड. एंड इट शुड नॉट आइडियली बी, मतलब क्या हुआ कि इफ यू इवन मेक अ अपडेशन इन द रिकॉर्ड इट वुड क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड इनसाइड कॉन्टैक्ट. तो वो लॉजिक सही है वहां पे हमारा, उसको क्रिएटेड पर ही बनाना है आपको. अगर आप उस प्रोसेस बिल्डर को जाके क्रिएशन एंड अपडेशन पे कर दोगे तो यू नो व्हाट वुड बी हैपन. अभी जस्ट नाउ आई कमिटेड अ अपडेशन, मैंने अकाउंट की फोन चेंज किया है, तो इसमें क्या होगा पता है, फिर एक नया कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा. दैट वुड ऑब्वियसली बी अ डुप्लीकेसी ऑफ रिकॉर्ड, रिडंडेंसी ऑफ द रिकॉर्ड. वी डोंट वांटेड दैट टू बी हैपन, राइट. मतलब कॉन्टैक्ट में अगर कोई रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है तो वो तब होना चाहिए जब अकाउंट में नया रिकॉर्ड क्रिएट हो. अगर आप अपडेट कर रहे हो और तब भी रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो इट वुड क्रिएट सो मेनी रिकॉर्ड्स इनसाइड कॉन्टैक्ट. काफी सारे रिकॉर्ड्स बन जाएंगे एवरी टाइम. फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 बार कुछ अपडेशन किया, 10 बार कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड चेंज हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे. And that we don't want it, right? We don't want this to get happen. This would obviously create a redundant data. तो इसलिए ये जो लॉजिक हमने लास्ट टाइम बनाया था दैट वाज ऑन क्रिएशन ओनली एंड दैट्स परफेक्ट, वो बिल्कुल सही है. अभी फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और है. हम चाहते हैं फ्यू फील्ड्स का प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना जिसको बोलते हैं. तो ये प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि ये कुछ फील्ड्स हैं कॉन्टैक्ट की, दे आर हैविंग अ डिपेंडेंसीज ऑन द अकाउंट एंड दे शुड ऑलवेज बी प्रॉपर्ली सिंक्ड विद अकाउंट. कि अगर आप अकाउंट का फोन या फिर फैक्स में कोई भी चेंजेस करते हो तो वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट जो है, जो रिलेटेड कॉन्टैक्ट है, उसका भी फोन और उसके भी फैक्स में वो नया वैल्यू आ जाना चाहिए, अपडेटेड वाला वैल्यू जो है, विच इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ एज यू कैन सी. अभी स्क्रीन पे हमको साफ साफ समझ में आ रहा है ये बात. सो हाउ टू अचीव दिस, लेट्स इसके लिए मैं फील्ड अपडेट एक्शन पे जाने वाला हूँ ऑफ कोर्स. तो ये कैसे करते हैं इसके वो अलग चीज है, लेकिन ये क्यों करते हैं वाज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट. ठीक है, चलो नाउ इफ इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, लेट्स नाउ प्रोसीड किया अभी हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे. ठीक है, सो मैं ऑफ कोर्स इसके लिए प्रोसेस बिल्डर ही बनाने वाला हूँ. सो आई एम गोइंग विद सेटअप मेन्यू एंड सेटअप के बाद में बिल्ड, उसके बाद में I'll go with create. Inside create we are having workflows and approval, and I'll go with process builder for that. I'll go with process builder. And I'll create a new process builder again on contact. So continue in the process builder. I'll name this as sync account phone and fax to related contact. You can give any name, but try always to give, the relevant name, which would describe what this process is actually doing. Now, you always have to select when the record changes, right? And save it.
Now I'll add the object. This I'm designing on account, so I'll select account once again. It would indicate, see, it would give you warning. It would not going to stop you. All right. See, it's always good to create one automation per object, but in real time, this is not possible. I mean, it's always even with the flows as well. I mean, we always try to include our business logic into the same flow, into the same process builder every time, but certainly it's not possible, right? So it is as in best practice, as a good practice, you should always have one automation per object. जैसे अभी मैं अकाउंट पे पहले ही कुछ क्रिएट कर चुका है मैंने, राइट? स्टिल आई एम ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू ऑन टू अकाउंट. So it would give, if it would give you one warning कि यार in the account it's already have a process. So would it be better, I mean, if you go with the same process and you try to immerse your logic over there. हाँ, हम कर भी सकते थे, बट हमारा इस वक्त जो लॉजिक है ना, दैट इज ऑन क्रिएटेड एंड एवरी टाइम एडिटेड. और इसके पहले जो मैंने प्रोसेस बिल्डर बना रखा है, दैट इज ऑन क्रिएटेड. तो when this is the case, you wanted it to be get fired, the event are different, right? If the event is same, अगर मान के चलो कि ये किसी वजह से ये प्रोसेस बिल्डर जो मैं अभी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये क्रिएशन पर ही होता, the event was created only, तो I'm not going to create a new for this. rather मैं उसी में जाके कहीं ना कहीं अपडेट का, कहीं ना कहीं लॉजिकली ये सारा चीज वहीं पर इंसर्ट कर देता था. बट वहां इवेंट अलग है. उस प्रोसेस बिल्डर का जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, उसका इवेंट अलग है और इसका इवेंट अलग है. दैट इज द रीजन आई एम क्रिएटिंग टू सेपरेट प्रोसेस बिल्डर. सो दिस वुड जस्ट गिव यू वन वार्निंग. It was not going to stop you in any cases, right? चलिए, so let me select the event for this. So event is created and edited. All right. हाँ, one change what you are going to observe over here would be like, ठीक है, see, अभी जैसे as you can see यहाँ पे schedule actions नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है. If you remember it with the workflows, और वर्कफ्लो हमने इसीलिए पढ़ा है कि हमको ऑटोमेशन का एक बेसिक आइडिया हो जाए. तो आपको याद होगा, देयर वर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस इन वर्कफ्लोज: created and every time it is edited, and any time it is edited, meeting the subsequent criteria. Now with the second one, created and edited, you cannot go with the time dependent actions. Time dependent actions inside process builder are called as scheduled actions, one and same thing otherwise. So if your criteria is created and every time it is edited, you cannot go in the workflows, you cannot go with the time dependent action. This is the same with your process builders as well. Right now I'm selecting when a record is created or edited, and as soon as I'll save it, as soon as I'll save it, you are going to see one thing. One change you are going to see would be like, this ye hat jayega yahan se. Okay? Because in the process builder also, this is the same concept. When your criteria is created and edited, you cannot have a scheduled action. Right? Let's see that. So I'll save it. See, that is scheduled action body is gone. So even in the process builder, this is same. If your criteria is, your event is created and updated, you cannot go with the scheduled actions. All right. Now let me add the criteria. Here I'm going to evaluate for one formula. I'll check if phone or fax is changed. Accounts, phone and fax is changed. See, what we are discussing right now, right? Let me take you to go back to this. I'm trying to build up a module in such a way that if you change account's phone value or maybe the fax value, then and then only you wanted this to get synchronized with contacts phone and fax. I mean, you wanted this business logic, this business automation, what you are designing right now, ये process builder जो आप कोशिश कर रहे हैं बनाने की अभी, I just don't wanted it to every time, every time इनमें से कोई भी field, इनमें से अगर मान के चलो I'll change the status, or maybe I change the value of SLA, जैसे gold or silver. So अगर if I make any changes in these kinds of field, right? So that time I don't want it कि मतलब I have nothing with to do this, because मेरा intention सिर्फ एक ही चीज है यहाँ इस process builder में अभी जो मैं बना रहा हूँ. मेरा intention typically एक ही है, और वो ये है कि account का phone और fax should be get synchronized with the phone and fax of contact.
अगर आप फोन में चेंजेस कर रहे हो, फोन की वैल्यूज में या फिर फैक्स की वैल्यू में, तो हम चाहेंगे कि हाँ इट शुड गेट सिंक्रोनाइज, दैट टाइम, दैट टाइम, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, दैट टाइम वी वांटेड इट टू बी गेट सिंक्रोनाइज्ड पर्टिकुलरली, है ना, यहाँ से। लेकिन मान के चलिए इफ यू आर मेकिंग चेंजेस इनसाइड ओनरशिप, अगर आप यहाँ चेंज कर रहे हो, यहाँ चेंज, इनमें से या किसी भी और फील्ड पे चेंज कर रहे हो, तब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आई आई जस्ट डोंट वांटेड टू फार दिस ऑटोमेशन, तब हमें कोई लेना देना नहीं इस चीज से। बिकॉज टिपिकली हम क्या चाहते हैं कि फोन और फैक्स जो है ये ही सिंक्रोनाइज रहना चाहिए हमेशा आपस में। तो ठीक है, अगर अगर फोन की वैल्यू चेंज हो रही है अकाउंट में, या फैक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपका ऑटोमेशन फार हो जाए और वो सिंक्रोनाइज कर दे, यहाँ तक तो सही है। बाकी किसी और की वैल्यू चेंज हो रही है, हालांकि आप बट व्हाट यू आर डिजाइनिंग राइट नाउ इज क्रिएटेड ऑन अपडेटेड, तो वैसे तो ऑटोमेशन जब फायर होगा, हमें जब ऑटोमेशन, जब यहाँ पर आप कोई भी फील्ड पे अपडेट करोगे, तो ये ऑटोमेशन बैकएंड में फायर होगा। लेकिन फील्ड अपडेट एक्शन टिपिकली सिर्फ तभी होने वाला है अगर आप फोन की वैल्यू या फैक्स की वैल्यू चेंज करते हो, तो इट वुड चेक दिस। तो हाउ इट वुड गोइंग टू चेक दिस, मतलब ये ऑटोमेशन तो फार हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब ये प्रोसेस बिल्डर बनाया, तो क्या क्राइटेरिया क्या सिलेक्ट किया आपने, आपने सिलेक्ट किया क्रिएटेड एंड एवरी टाइम एडिटेड। तो जब जब अकाउंट में कोई भी फील्ड में आप चेंजेस करोगे, आपका ऑटोमेशन तो फायर होगा, ऑफकोर्स फायर होगा। अगर आप एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हो तब भी फायर होगा, अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में कहीं पर भी कोई भी चेंजेस करते हो तब भी फायर होगा। लेकिन ये जो फील्ड अपडेट एक्शन है अकाउंट का फोन और फैक्स, ये मैं टिपिकली तब चाहता हूं, ये फील्ड अपडेट एक्शन, ये सिंक्रोनाइजेशन अकाउंट फोन और कॉन्टैक्ट, अकाउंट फोन कॉन्टैक्ट फोन, अकाउंट फैक्स और कॉन्टैक्ट फैक्स का, ये सिंक्रोनाइजेशन हम पर्टिकुलरली तभी चाहते हैं अगर अकाउंट फोन और फैक्स चेंज होता है तो। सो हम ये कैसे चेक करेंगे, इसके लिए अब मैं आपको आज फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम कंडीशंस देखते थे जहां हम फील्ड्स वैल्यूज देखते थे, आज हम एक फॉर्मूला पे काम करेंगे। एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है इज चेंज्ड, एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है जिसका नाम होता है इज चेंज्ड। लेट मी ट्राई टू गेट इट। क्यों नहीं बता रहा है? Blank if, I don't know why it's not listed out over here, but see, I can show you like this as well. And if you try to create a new field, for example, and you select formula from here, and if you go with this, return type would be checkbox currency that is change percent, true or false, boolean. Checkbox number percent. Checkbox is changed. Let me try with text only. If I go with next, I go with advanced formula. Maybe over here we can find it out. Let's go with logical. अरे यार यहाँ पर भी क्यों नहीं बता रहा है? All functions. Anyways, if it's not showing, but I know that formula is change function in the Salesforce. So this is one of the functions. If it is not showing in over here, no problem. Is change is actually a function. Let me try to show you that. What this function actually would do. See, there is a function called as is change. Now, is change would actually track the real time events over a field. इसका मतलब क्या होता है? मतलब इस चेंज में जो पैरामीटर हम देते हैं, इस चेंज के साथ में, अगर इफ इस चेंज इज द नेम ऑफ दैट फंक्शन, इसके अंदर जो हम पैरामीटर देते हैं, दैट पैरामीटर इज ऑलवेज अ फील्ड. So with this, you can track whether this particular field value is getting changed or not. आपने जिस किसी फील्ड का नाम दे दिया, तो इट वुड कंपेयर, देयर इज एन ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू कंसेप्ट, वो भी मैं बताता हूँ कि ये कहाँ से काम करता है. ठीक है, सो
एक field history, I mean, there's a for every object there is there's a child object. जैसे opportunity की बात करूं तो opportunity का एक object होता है opportunity field history. account object होता है तो account का एक और child object होता है, standard object है जिसका नाम है account field history. और जैसे कि case field history, तो एक object होता है field history नाम से. सो फील्ड हिस्ट्री में व्हाट इट वुड स्टोर न्यू वैल्यू एंड ओल्ड वैल्यू. ठीक है, ये एक इंटरनल ऑब्जेक्ट होता है सेल्सफोर्स में. तो ये इस चेंज जो होता है ना, इस चेंज एक्चुअली टिपिकली वर्क ओवर देयर. इस चेंज एक ऐसा फॉर्मूला होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिस जब इसका पैरामीटर बेसिकली एक फील्ड होता है. तो जब भी आप इसको किसी फील्ड के साथ देते हो तो इट वुड ट्रैक कि वो पर्टिकुलर फील्ड में चेंजेस हुए हैं क्या. तो ये कैसे पता लगाता है कि चेंज हुए या नहीं. तो इसमें सिंपल है कि दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है न्यू वैल्यू और एक होता है ओल्ड वैल्यू. अगर न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू सेम है, तो इसमें ये रिटर्न करता है फॉल्स, मतलब कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. लेकिन अगर मान के चलो ओल्ड वैल्यू है एक्स और न्यू वैल्यू है वाई, इसका मतलब चेंजेस हुए हैं, वैल्यूज बदली हैं, तब ये रिटर्न करता है ट्रू. और इसके लिए जिस ऑब्जेक्ट को वो यूज करता है वो होता है फील्ड हिस्ट्री ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज नॉट शोइंग ओवर हियर, हालांकि ये फंक्शन तो है, मैं कई बार यूज किया है. आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज नॉट शोइंग ओवर हियर. बट हाँ, ठीक है, नहीं है, मुझे नहीं पता किस लिए. लेकिन इस चेंज एक फंक्शन होता है जिससे हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू चेंज हुई है या नहीं हुई है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी कैन सी. और इसमें देखो आप इस तरह से कुछ फॉर्मूलाज वगैरह ऐसे बना सकते हैं, बट एनीवेज आई एम गोइंग टू कीप इट सिंपल फॉर यू. सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू इवेल्युएट दैट. ठीक है, आई एम गोइंग टू इवेल्युएट दैट एंड आई ऑलरेडी हैव डिजाइन दैट फॉर्मूला, आई कैन शो ओवर हियर. ठीक. See, let me try to simplify this for you. I'll do one thing. Okay, I'll do one thing like this. Okay. So what I am doing would be like, ठीक है, मैं और simplify करता हूँ उसको. Let me try to simplify this. और पहला formula समझो. ठीक है, पहले आप formula समझो. I use a function called isChange. ठीक है, I used a function called isChange. Now, isChange inside this bracket, as you can see the syntax is change and उसके बाद में field. ठीक है, inside the bracket. So inside the bracket I'm going to give the name of that field which I wanted to track कि ये particular field में कोई changes आए हैं क्या. Alright, so I would be using किसका फोन, अकाउंट का फोन और फैक्स, इसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ. ठीक है, अकाउंट का फोन एंड फैक्स. सो आई वुड बी गोइंग विथ अकाउंट्स फोन. आई सेलेक्ट दिस. ठीक है, तो एक तो ये फील्ड है अकाउंट फोन. अकाउंट इन द ब्रैकेट इट ऑलवेज इंडिकेट ऑब्जेक्ट डॉट फोन. तो इस चेंज, क्या ये वाली फील्ड चेंज हुई है, इस चेंज फोन. ठीक है, इस चेंज फोन, क्या ये पर्टिकुलर फील्ड चेंज हुई है. ठीक है, और एक और फील्ड है. ठीक है, एक फील्ड और है, वो है फैक्स. इन दोनों के चेंजेस हमको डिस्क्राइब करना है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू वुड बी लाइक, मैं इसको एक ब्रैकेट में ले लेता हूं. आई टेक दिस इन अ वन ब्रैकेट. ठीक है, और ठीक है, और दूसरी जो फील्ड है मेरी उसको दूसरे ब्रैकेट में, सेम फॉर्मूला आई विल बी गोइंग टू रिपीट. मतलब यहां पर ऑल्सो is changed. Now inside this bracket, I'm going to give the second field. So second field मेरी कौन सी है, that is facts. So I'm going to take it like facts. Select. ठीक है. Now this is the formula. This is the formula. कि is change क्या अकाउंट की फोन फील्ड या अकाउंट की फैक्स फील्ड, ये आप इसमें कोई चेंजेस आए हैं क्या. ठीक है, और ये पूरा जो फॉर्मूला बनाया मैंने, आई एम गोइंग टू टेक दिस इनसाइड वन सिंगल ब्रैकेट. नहीं भी दिया तो भी चलता है. मैंने दिस इज आल्सो गोइंग टू वर्क, दिस इज आल्सो गोइंग टू वर्क. ऑलराइट, सो इफ दिस फॉर्मूला, तो इफ आई नाउ कॉपी दिस, और अगर आपको देखना है कि whether this is all good or not, तो आप एक फॉर्मूला फील्ड बना के हमेशा सिंटैक्स को चेक कर लिया करो. मतलब दिस इज वन ऑफ द गुड प्रैक्टिस. सी, यहाँ पे आपको बता रहा है कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग. Okay, let me try to do certain changes over here, comma, and I'll take this or over here.
check syntax. What is that I'm missing? No, nothing. Is change account phone, is change account fax. Why it is giving this error? Missing equals to. अच्छा, ये तो होता नहीं है यार. नहीं 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 नहीं. I don't know. I'm not sure why it is giving you this error. Let me do one thing. और को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ. I'll just bring this out of the bracket. Because यहाँ पे ना check syntax का कुछ नहीं होता है. I mean over here. But anyways, let me try to save it. Is change account phone, comma is change account fax. चलो देखते हैं, इसके साथ प्रोसीड करते हैं. अगर कुछ एरर आएगा तब हैंडल करेंगे उसको. एनीवेज, ठीक है. तो मैंने एक कंडीशन बनाई, एक फॉर्मूला बनाया कि बिकॉज वी वांटेड टू चेक फॉर वन थिंग कि अगर अकाउंट का फोन या फिर अकाउंट के फैक्स, ये दो फील्ड्स में अगर चेंजेस आते हैं, देन वी गोइंग टू फायर दी फील्ड अपडेट एक्शन. तो हमारा एक्शन कब फायर होना चाहिए कि अगर फोन और फैक्स चेंज हुआ तो. एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्शन? अभी जब मैं एक्शन पे आ रहा हूं तो हमारा एक्शन टिपिकली क्या रहेगा? फील्ड अपडेट एक्शन रहेगा. बट ये फील्ड अपडेट एक्शन कब होना चाहिए? ये तब होना चाहिए जब अकाउंट का फोन या फिर फैक्स में कोई चेंजेस आते हैं. ठीक है. और इसके अलावा अगर आप क्रिएट एंड अपडेटेड बाकी कोई फील्ड्स अपडेट हो रही है तो वी डोंट वांटेड टू सिंक्रोनाइज दिस. सो दैट्स द रीजन मैंने एक फंक्शन यूज किया यहाँ पे इस चेंज नाम का. I'm not sure why it is not listing out over here, but anyways, I'm going to continue with that only. Now in the immediate action, I'll select field update. Update the records. Okay. And it would be like update contact phone and fax. रिकॉर्ड टाइप कहाँ पे आपको चेंजेस करना है? तो देयर आर टू ऑप्शन. सी व्हेन वी हमने जब प्रोसेस बिल्डर सॉरी वर्कफ्लोज हमने पढ़ा था, that time I discussed something with same object field update and cross object field update action, right? तो field update action के दो टाइप्स होते हैं. इन द सेम ऑब्जेक्ट जहां पर आपका ऑटोमेशन फायर हुआ है, जैसे अकाउंट पे आपने कुछ बना रहे हैं और अगर आप अकाउंट में ही चेंजेस कर रहे हो तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज सेम अकाउंट, सेम ऑब्जेक्ट. अगर आप किसी और में कर रहे हो, रिस्पेक्टेड टू अकाउंट, अगर आप कहीं और कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड एज क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन. ठीक है. तो वर्कफ्लो में हमने ये चीजें थियोरेटिकली अच्छे से पढ़ी थी. एंड दैट टाइम आल्सो वी डिजाइन दिस क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन. हमने अपॉर्चुनिटी के चेंजेस को मे बी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अपॉर्चुनिटी के चेंजेस को आई थिंक हमने अकाउंट पे रिफ्लेक्ट करवाया था. तो यहां पर भी आपके सामने दो ऑप्शंस है. व्हेन यू आर ट्राइंग टू अपडेट अ रिकॉर्ड, यू आर हैविंग टू ऑप्शंस. सिलेक्ट द अकाउंट रिकॉर्ड दैट स्टार्टेड द प्रोसेस. तो क्या आप चेंजेस अकाउंट रिकॉर्ड में करना चाहते हो? बिकॉज दिस ऑटोमेशन इज बीइंग डिजाइन ऑन अकाउंट. दिस इज समथिंग इज कॉल्ड एज लाइक सेम ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन. और या फिर सिलेक्ट अ रिकॉर्ड दैट इज रिलेटेड टू द अकाउंट. इस रिकॉर्ड के साथ जो रिलेटेड है आप उसमें चेंजेस करना चाहते हो. यू आर हैविंग टू रेडियो बटन्स ओवर हियर. यू आर हैविंग टू सिलेक्शन ऑप्शन. दिस इज सेम ऑब्जेक्ट एंड दिस इज क्रॉस ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पर वी वांटेड कि अगर अकाउंट के फोन या फैक्स में चेंजेस हो रहे हैं, सो आई वांटेड टू अपडेट कॉन्टैक्ट्स फोन एंड फैक्स. सो आई वुड बी गोइंग विद द सेकंड ऑप्शन. सिलेक्ट अ रिकॉर्ड दैट इज रिलेटेड टू अकाउंट. इस अकाउंट से रिलेटेड जो है जैसे कॉन्टैक्ट है तो उसमें चेंजेस करना है. एंड सो आई एम गोइंग विद द सेकंड ऑप्शन, राइट. उसके बाद में इफ यू सिलेक्ट, आई मीन इफ यू सिलेक्ट, इट वुड गिव यू कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट है वो. बिकॉज दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स, आई मीन इफ यू दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर रिलेटेड टू अकाउंट. तो अगर आप कह रहे हो कि रिलेटेड टू अकाउंट करना है तो कौन किस में करना चाहते हो? सो आई टिपिकली वांटेड दिस टू बी हैपन विद कॉन्टैक्ट एंड सो आई एम सिलेक्टिंग कॉन्टैक्ट्स. ऑलराइट. सो आई वांटेड टू कमिट द चेंजेस इनसाइड कॉन्टैक्ट एंड देन आई सिलेक्टेड. ठीक है, देखते हैं. हाँ, for this changes, I mean for this synchronization, do you wanted to have any criteria? तो I selected no criteria. I mean no. ठीक है, no criteria, just commit the changes, nothing to be get. उसके साथ कुछ नहीं चाहिए मुझे. हाँ. So
दिस इज एक मिनट मुझे सोचने दो, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, अकाउंट फील्ड आईडी, इन द कॉन्टैक्ट अकाउंट फील्ड आईडी शुड हैव, इन द कॉन्टैक्ट में जो फील्ड अकाउंट आईडी, वो अगर मैं नहीं करूंगा तो अगेन इट वुड बी सेम, जो इसके पहले हमारे साथ हो चुका है वो आज फिर से हो जाएगा, इसीलिए मैं इस चीज का ध्यान रख रहा हूँ, अकाउंट आईडी। ठीक है, तो कांटेक्ट में जो अकाउंट आईडी फील्ड है, इट शुड बी अपडेटेड विद अकाउंट आईडी, दैट इज एसेंशियल। लेट मी वंस अगेन रीथिंक, हाँ इट इज एसेंशियल है। उसके बाद चलो अब हम आते हैं कांटेक्ट में बिजनेस फोन नाम की फील्ड है, that should always get updated, field reference that should always get updated with account की phone field, account का phone field क्या है, whenever you commit any changes inside the account क्या phone, it should get copied to the contact phone, business phone नाम से field होती है contact में। and similarly fax business fax, contact का business fax should get a value, field reference should get a value, always it should get a value from account fax। ठीक है, आई एम सेलेक्टिंग दिस फील्ड, बस इतना ही है। अब इसमें कितने फील्ड्स लाना वो आपके ऊपर है, आई एम शोइंग यू जस्ट 2 एग्जांपल्स, लेकिन ये जरूरी है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये फिर से वही हम जो लास्ट टाइम हमने जो इशू फेस किया वही होगा। ठीक है चलो टू रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट है उसी में ये चेंजेस होने चाहिए, एंड दैट्स द रीजन कि कॉन्टैक्ट की अकाउंट आईडी फील्ड शुड ऑलवेज हैव अकाउंट आईडी। नाउ लेट मी ट्राई टू सेव इट, एंड ठीक है, let's now activate and let's try to see। चलिए ये तो हो गया है, I'll go and I'll refresh this। ठीक है, let me try to make this as 2 2 2 2 2 2 2 2 and let me try to make this as 3 3 3 3 3 3। ठीक है, and let's now try to save it। अभी आप देख रहे हो कि फोन और फैक्स का वैल्यू अलग है, let me try to save it and let's see इस चेंज फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। it's working as you can see। ठीक है, so whatever the value of phone, you see whatever the value of phone, it is get synchronized with contact phone, and whatever the value of fax, it gets synchronized with the account fax, right? This is what ऐसा है। now if you change, I mean ये तो मैंने दोनों ट्राई करे, आप कोई एक भी करोगे तो रिजल्ट वुड बी सेम, ऐसा नहीं कुछ अलग रहेगा। now see if I make it like all fives, if I make it all five and if I try now to save it, तो फैक्स में चेंज किया आपने इसलिए फैक्स ही चेंज होगा। ठीक है, फोन वुड बी द सेम, ऐसा रहेगा ये। So this is what like is called as real time sync, इसी को बोलते हैं real time sync of the fields। तो whenever this is your requirement, क्या जहां आप देखो कि कुछ ऐसी fields हैं that should always be properly synchronized with their respective parent changes, कि अगर वो particular field में parent object में changes होता है तो वो कितनी भी fields रह सकती हैं, that is completely a different thing। तो मैंने यहाँ 2 fields का बताया आपको कि अगर अकाउंट में फोन और फैक्स फील्ड में अगर पर्टिकुलरली चेंजेस होते हैं तो उससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट फोन और फैक्स में भी चेंजेस होना चाहिए। तो इफ दिस इज योर यूज केस ना, तो उसको इस तरह से हम डिजाइन करते हैं। तो वहां हम लोग फिर एक फंक्शन यूज करते हैं, इस चेंज नाम का फंक्शन। ठीक है, इस चेंज नाम का ये जो फंक्शन है हमारा, ये तब हम यूज करते हैं। और बिकॉज एक से ज्यादा था, है ना, एक से ज्यादा था, इसलिए देखो मैंने इस फंक्शन को कैसे बनाया, यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर को यूज किया, इस चेंज अकाउंट फोन, एक ब्रैकेट में इसको दिया, कॉमा इस चेंज अकाउंट फैक्स, उसको एक ब्रैकेट में लिया, और बाकी ये पूरी इक्वेशन को फिर एक ब्रैकेट में डाल के बाहर और लगा दिया। तो ये और टिपिकली यहाँ भी रख सकता है, मैं देखता हूँ ट्राई करके एक बार। ये और यहाँ बीच में लगा सकता हूँ क्या, मैं ट्राई करता हूँ मेरे को। तो I'll just यहाँ पे लगाता हूँ मैं, और एक एक ब्रैकेट यहाँ से हटा देता हूँ। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई थिंक आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो दिस इज समथिंग लाइक द सेम, हम स्कूल में जो हमने पढ़ा था कि दिस इज माय वन इक्वेशन, लेट्स कंसीडर दिस इज एक्स एंड लेट्स कंसीडर दिस इज वाई। तो इट्स सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है ये। कोई सिंटैक्टिकल मिस्टेक तो नहीं है, नहीं नहीं है। नाउ लेट मी ट्राई टू सेव इट। हाँ देखो यहाँ पे एरर आ गया एक्चुअली, सिंटैक्स एक्स्ट्रा और, तो इट शुडंट बी लाइक दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इफ देयर इज समथिंग इन एरर, तो और इसमें फिर आपको यू हैव टू पुट, और अगर मैं एक मिनट अगर मैं वापस ब्रैकेट लाऊं तो लेट मी ट्राई विद अनदर पॉसिबिलिटीज।
मैं ऐसे ही ट्राई करता रहता हूँ यार, मतलब हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको और को बाहर ही लगाना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ फॉर्मूला डिजाइन कर रहे हैं तो आप इसको यू हैव टू पुट और आउटसाइड द ब्रैकेट ओनली, ठीक है, दैट इज व्हाट इज डिसअलाउड, ठीक है। ठीक है, so this is like how we achieve something called as a proper synchronization. तो whenever you will having this kind of use case, आप उसको इस तरह से बना सकते हो by making a use of is change functions, all right, by making a use, see there are so many functions over there, ऐसा नहीं है, and not everyone is listed out, see ये there are so many functions, I mean if you go with this, let me try to give it inside your group. तो कैसा होता है, जैसे अभी आप देखो कि यहाँ पे इन दिस डॉक्यूमेंट इफ यू कैन सी देयर आर सो मेनी फंक्शंस, राइट, ये इतने सारे फंक्शंस हैं, बट नॉट एवरी वन ऑफ देम इज लिस्टेड आउट इन द फॉर्मूला फील्ड। तो वहां पे जैसे कि लाइक आई आई वाज नॉट एबल टू लोकेट इस चेंज फंक्शन, वहां नहीं दिखा पा रहा था मैं आपको, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, बट स्टिल दे आर, आई मीन इफ यू वांट यू कैन गेट द लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट फ्रॉम हियर। सो ये जो सेल्सफोर्स के हेल्प डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, इनको यूज किया करो। So this would help you out to get like what are the different possible different kinds of formulas and all that, right? Now this is related to, let me try to show you, this is related to all formulas and operators, all right, but if you can minimize, you know, you can minimize your searches, like if you wanted precisely some formulas for date and time maybe, all right, all right, for maybe some other logical operation, so you can minimize your searches over here, all right, by going with this, but otherwise ye jo documents rehte na, they are very helpful. And how to get this, obviously you go with Google's, you know, you go with Google's, बट सेल्सफोर्स ना काफी सारा स्टडी मटेरियल है ऑनलाइन है, help.salesforce.com और developer.salesforce.com, ये दो ऐसी ऐसे लर्निंग रिसोर्सेज हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रेलहेड ऑफ कोर्स, help.salesforce एंड developer.salesforce.com, ये बहुत बहुत तगड़े कहना चाहिए लर्निंग रिसोर्सेज हैं। तो यूजुअली जो हम लोग स्टक होते हैं ना, तो उसको हम यहाँ से रिजॉल्व कर लेते हैं, developer.salesforce.com और help.salesforce.com, ठीक है। चलो I'll just give you this link, you know, आपके ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से भी देख लिया करो, स्टडी किया करो, ठीक है। So this is how that real time synchronization कैसे बनाया जाता है, ठीक है, this was one of the good example for that, all right, and that's also complete your process builder. Now go with these two assignments, configure a process on the lead and current user banking, and हाँ, this is something very good, ये तो ठीक है, ये तो सिंपल है, ऐसा कुछ खास नहीं है वो, वेयर एक प्रोसेस बिल्डर बनाना आपको लीड ऑब्जेक्ट में, जो कि एक टास्क क्रिएट करे, ठीक है, विच वुड क्रिएट अ टास्क टू द करंट यूजर, बट कंडीशन होना चाहिए कि एनुअल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू 50 लाख, ठीक है, ये सिंपल है। ये वाला थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको अटेम्प्ट करो आप, अटेम्प्ट दो ही करने हैं आपको, सॉरी। Configure a process builder on the hiring manager to send the email notification. I mean, as soon as a record is created, maybe, ठीक है, हाँ, creation of the record. तो criteria would be created only, लेकिन that notification should come after 15 minutes. After 15 minutes, 15 मिनट के बाद, मतलब इमीडिएट नहीं, scheduled एक्शन रहेगा, लेकिन 15 मिनट। अभी यहाँ पे एक डिफिकल्टी जाने वाली है आपको, I'll tell you that difficulty. So maybe I already have it. Right? 1 second, मैं सैंपल वाले तो बनाए हुए हैं मेरे। अच्छा, मैं फ्लो में कहाँ से पहुंच गया यार, लेट मी क्लोन दिस, ठीक है। देखो डिफिकल्टी क्या जाने वाली है आपको, आई टेल यू, whenever you're trying to, you know, whenever you're trying to go with any scheduled action, तो आपके पास ऑप्शन जो है ना वो डेज एंड आवर्स में होते हैं, मतलब दिस फ्लो व्हाट यू आर फायरिंग, ये 1 डे आफ्टर या बिफोर ऐसा हो सकता है, ठीक है, 1 आवर आफ्टर या बिफोर भी हो सकता है, मिनट्स नहीं होता। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ईमेल सेंड होना चाहिए, लेकिन 15 मिनट्स के बाद, ठीक है। अभी यहाँ पे एंड यू कैन नॉट गो लाइक 0.30, ऐसा नहीं कर सकते, इफ यू ट्राई टू गिव सेव दिस, यू नो, इट वुड गोइंग टू गिव यू द एरर 0.3 आवर्स, सी,
Invalid value. It should always be, it should not be in decimal points. नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक्सेप्ट नहीं करते. हाँ 3 आवर्स दोगे आप तो वो एक्सेप्ट कर लेगा. इट वुड गोइंग टू से हाँ ठीक है, बस यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा फील्ड का, बट इट वुड नॉट शो यू एरर ओवर हियर. ठीक है, जैसे 3 आवर्स क्रिएटेड बाय, ठीक है, ये ले लेगा वो. दिस इज व्हाट इट्स पॉसिबल. लेकिन अगर आप यहाँ पे आई मीन आप आवर्स लेके यहाँ पे पॉइंट में जाते हो, इट वुड नॉट गोइंग टू. 30 मिनट्स होता तो आप सोच रहे हो कि ठीक है 30 मिनट्स वुड बी लाइक 0.5, तो मैं ऐसा कर लूंगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो 15 मिनट्स के बाद कैसे फिर फायर करोगे? दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस. दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट कि हमको एक ईमेल सेंड करना है, लेकिन ये कब होना चाहिए? जैसे आपने रिकॉर्ड क्रिएट किया उसके 15 मिनट्स बाद. तो दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट. अब मैं यहाँ पर मैं एक हिंट देता हूं आप सभी को, एंड आई वांटेड टू डू यू द रिसर्च ऑन दिस. इसके लिए आपको एक फॉर्मूला फील्ड बनानी पड़ेगी. बाय द फॉर्मूला फील्ड योर रिकॉर्ड क्रिएशन के ऊपर से 15 मिनट्स का आपको एक फॉर्मूला मिलता है. तो उसके लिए गूगल करो और इस पे रिसर्च करो. ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है. ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. अगर आपने ये सॉल्व कर लिया ना, तो इट वुड बी लाइक कि आपने अच्छी खासी रिसर्च करी है, समझ में आ जाएगा. तो मैं हिंट ये दे रहा हूं कि इसके लिए आपको एक फॉर्मूला फील्ड बनवानी है और जो आपने कॉल करनी है. ठीक है, गो विद दिस. गो विद दिस. इफ यू नॉट बीइंग एबल टू फाइनली फाइंड इट, आई एम गोइंग टू शेयर यू वन वीडियो. वैसे भी मैं देने ही वाला हूँ वो वीडियो. 1 सेकेंड ना, मैं कहाँ है, मेरे को ढूंढने दो बस. आई वुड बी गोइंग टू शेयर दैट वीडियो विथ यू गाइज. ये जो है सेशन ऑन कंसोल ऐप और जो प्रोसेस बिल्डर की असाइनमेंट जो आपको दो दिखाई मैंने अभी. ठीक है, लेट मी ट्राई टू प्ले दिस. You have probably not completed the sharing sections. You can minus this 45 minutes is 15 minutes. This is that formula. According to this, ठीक है, बट आई एम गोइंग टू शो यू दैट. बट उसके लिए पहले थोड़ी सी रिसर्च करो, है ना. अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू अपलोड दिस इनटू योर ड्राइव मे बी 2 days 3 days आफ्टर दिस. यहाँ से दो चीजें आपको पता चल जाएंगी. एक तो कंसोल ऐप के बारे में, ओके, व्हाट इज एग्जैक्टली अ कंसोल ऐप, एंड सेकंड वुड बी दीस टू असाइनमेंट्स. ठीक है, तो ये दोनों मैंने सॉल्व कर रखी है, बट आई वांटेड यू टू डू अ लिटिल रिसर्च ऑन टू दिस. ठीक है. All right. With the next session by tomorrow morning, I'm going to start with approval process, the third kind of automations. Yeah, that's all for today. Let me give you this command. Yeah, now you can admit yourself. Any questions? Any questions? All right, then. Thank you so much for joining.